initially I was interested in biology and my parents का भी बहुत रोल था and my elder brother also who's in third year of MBBS. Okay. तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था मेरे को because they always felt कि if I had to go into a profession it should be one in which I can also help people. Okay, so helping people is the sole reason you chose this particular field. Not the sole reason, but Okay. yes, it was a major factor. मतलब personally तो I wasn't able to believe it initially. घर वालों का they were shocked more than anything, and teachers, although they did expect it because my preparation was I would say very good. So teachers did expect it, but at home nobody did. Not my brother, nor parents, even me for that matter. 10th में मैं उतनी तो पढ़ाई करता नहीं था. 11th में आके काफ़ी झटका लगा था because syllabus इतना ज़्यादा हो जाता है तो it feels like all of a sudden you have to do a lot of things. ऐसा होता नहीं है लेकिन मतलब वही बात है कि feeling आती है कि 2 years of preparation you have to be consistent throughout and it gets overwhelming a lot of time. But मैं personally physics को ज़्यादा time देता था because people had advised me that physics is the subject that gets you the rank. It's the most difficult, it's the hardest to grasp, and it also, at least in the higher ranks, I would say it makes a great difference as to how you perform. So I gave less attention to biology in the beginning and chemistry also for that matter, and spent more time on physics. So physics में concept is the most important thing. 11th and 12th में जब time काफ़ी होता है तो concepts should be focused on and question practice का भी volume काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए I would say. Okay. Initially क्या हुआ था, मैंने theory बहुत हद तक neglect कर दी थी जो NCERT books हैं and even otherwise जो theory questions आते थे वो I would focus more on numericals. Okay. Towards the end I did fix that because आजकल जैसे NEET का pattern होता है उसमें theoretical questions play a major role. Right. So yeah, I would say for that NCERT reading is a must. I personally didn't do much of it in 11th, but towards 12th I did start to do it and it helped me a lot. 12th में theoretical portion I would say ज़्यादा है, तो emphasis पे ज़्यादा देना चाहिए, but everything should be done. The theory from the text, I mean, also the back exercises. Practice के लिए mainly coaching material and my teachers' notes. They were very good actually. I was lucky to have that. Okay. And I also referred to DC Pandey for physics, the JEE version, not the NEET version. The JEE version. ऐसा कोई specific reason कि Question level अच्छा है उसमें तो you know for building a base and also getting some peripheral knowledge in the subject, it's important I would say. PYQs NEET में तो सबको पता ही है, PYQs काफ़ी repeat होते हैं. हाँ, बिल्कुल से. तो मैंने I think at least 3 to 4 times PYQs सारे solve किए थे. 3 to 4 times. और कोई time frame के लास्ट 10 साल 20 साल की 5 साल? Generally फिजिक्स में तो as such कितने भी कर सकते हो. बायो में वो आता है कि earlier questions are outdated. So लेकिन हाँ, there's no harm in doing PYQs of physics till at least 15 to 20 years. 15 to 20 years you would recommend. Okay. Generally मैं notes अपने revise करता था. उसमें सारे formulas की derivations and questions उसमें जो दिए हुए थे. And then I would go back to some questions that I had either marked कि I thought they were important or I didn't understand them or I had doubts in them. So I would solve those many times. तो यार लेकिन नोट्स में एक प्रॉब्लम भी आती है ना कि हमने इतने बल्कि नोट्स हो गए तो उसको रिवीजन में टाइम भी तो काफ़ी लगता रहा होगा. हाँ, तो फिर कैसे सॉर्ट करते थे उसको यार? शॉर्ट नोट्स तो नहीं यूज़ किए थे मैंने. मैं वही नोट्स रिवाइज करता था डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम था मेरे पास उस पॉइंट पे. या तो क्विक रिविजन करता था या फिर पूरा लेंथ में फिर से सॉल्व करके एंड डिराइव करके करता था. I would say side by side. Theory definitely last 4-5 months में मैंने ज़्यादा पढ़ी थी because theory तुमने ज़्यादा करी. हाँ. Usually लोग practice ज़्यादा करते हैं लेकिन practice मेरी initially इतनी हो गई थी कि I didn't feel the need to do more of that towards the end. Okay. But I certainly felt that I was lacking in the theory part towards the end. तो इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा focus किया था before the exam. Okay, before the exam, theory part was the prime part. Yeah. Okay, great. So what was your जुगाड़ for inorganic chemistry? So inorganic के साथ तो I struggled up until the very end. I would say until the last month even. उसमें there's not much you can do. You have to remember it. NCERT से ही questions आते हैं तो वही याद करना ज़रूरी है. थोड़ा बहुत जहाँ पे concept use होता है वो कर लेना चाहिए, मतलब जितना हद तक हो सकता है. But after a point you have to remember the facts. There's nothing else you can do about it. So यही तो problem है यार. How to remember the facts? Actually कोई secret तो था नहीं. मैंने I think inorganic chemistry की NCERT at least
15 टाइम्स तो पढ़ी होगी इंटायर 2 years में, नॉट एट द एंड ओनली, बट तो नंबर ऑफ रिविजन जैसे इंक्रीज करोगे तो उसी से होगा. आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर वे टू डू इनऑर्गेनिक, एटलीस्ट नन दैट आई फाउंड. प्रैक्टिस में अगेन PYQs प्ले ग्रेट रोल इनऑर्गेनिक में, वो भी रिपीट होते ही हैं. एंड कोचिंग मटेरियल वाज द मेन सोर्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में फॉर इनऑर्गेनिक. एज सच इनऑर्गेनिक में उतनी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मेनली ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में ज़रूरत होती है. तो हाँ, दैट वाज इट. नोट्स नहीं बनाए थे लेकिन मैंने चार्ट्स बनाए थे. थोड़ा इस पे एलैबोरेट करना. हाँ, लाइक एक चैप्टर लिया, उसके सारे जैसे रिएक्शंस मेरे को याद करने हैं, तो आई वुड राइट देम डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर एंड आई वुड स्टिक इट अप नेक्स्ट टू माय स्टडी टेबल. अच्छा, तो वही हर दिन देखते देखते धीरे धीरे सारे हो गए थे. हाँ, तो इससे तो बहुत सारे चार्ट बन गए होंगे फिर तो. हाँ, बन जाते हैं. तो जितना कंसाइज रख सकते हैं उतना रखना होता है. लाइक आई थिंक आई मेड सम 10 or 11 पेजेस. अच्छा, इनऑर्गेनिक के लिए स्पेसिफिक. ठीक है. नॉट ऑल चैप्टर्स ऑब्वियसली, कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बहुत एक्सटेंसिव होते हैं. हाँ हाँ, उनके लिए चार्ट्स बनाना आई डिडंट सी एज फीजिबल, तो आई डिडंट डू दैट. Physical chemistry I studied a lot like physics. Okay. First theory and concept and then question practice. Question practice is a major part of it. उसमें calculation भी काफ़ी होती है और काफ़ी गंदी भी हो जाती है कई बार. काफ़ी बार फंस जाते हैं. फंस जाते हैं, तो उसके लिए तो again you have to practice a lot of questions. For physical chemistry I did mainly my coaching material. Okay. Teacher's notes again and N Avasthi the book. For theory or for practice? Practice questions, but not all, selectively. Like I would pick up a chapter and solve maybe 80 or 100 questions from it. अच्छा, ये chapter picking में कोई specifics? Again, the ones that I had more difficulty in. कुछ physical chemistry के chapters होते हैं जिनमें theory ज़्यादा होती है, तो उसमें नहीं करता था. जिसमें numerical oriented ज़्यादा है, उसमें तुम ज़्यादा practice and अवस्थी से क्या करते थे? NCERT again उसमें काफ़ी वो होते हैं चार्ट्स एंड डेटा भी बहुत होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, जो कि पूछा जा सकता है. जनरली एज मच एज इनऑर्गेनिक नहीं पूछा जाता है, बट हाँ, चांस तो रहता ही है. तो उसके भी मैं, अगर ऐसा कुछ चार्ट था जो कि याद नहीं हो रहा था, तो अगेन आई वुड कॉपी इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर और दीवार पे चिपका दे रहा था. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी तो आई डोंट थिंक कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने वाली है. राइट. तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म्स भी मैंने सारे ऑलमोस्ट ट्राई किए थे जितने हो पाते थे. कुछ बहुत आउट ऑफ लिमिट जाते थे तो वो मैं रिएक्शंस डायरेक्टली याद कर लेता था, बट जहाँ तक हो पाते थे आई वुड स्टडी द मैकेनिज्म्स आल्सो. कोशिश पूरी रही वो करने की. मैकेनिज्म्स कहाँ से पढ़ रहे थे? कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो कर रहे थे? नहीं, टीचर्स ही बताते थे. जो टीचर्स ने मैकेनिज्म डिस्कस किया वही रखा. तो वही टीचर से इंटरेक्शन उसी, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट होती थी उस पॉइंट. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई डिड MS Chauhan प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ठीक है. अदर चैप्टर्स वर अ बिट एक्सेस, आई थॉट आउट ऑफ सिलेबस आई वुड से, तो उसके लिए नहीं किया था मैंने, बट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल थी वो. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT इज इक्वली एज इम्पोर्टेंट एज इनऑर्गेनिक. डेफिनेटली उतना याद करने का नहीं होता है, बट हाँ, जहाँ तक पॉइंट्स है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफन पूछ देते हैं, जैसे चैप्टर्स हैं एल्डिहाइड कीटोन्स, एंड इस साल भी क्वेश्चन आया था, तो वो NCERT से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो रटने वाले पार्ट में भी पहले तो समझना ही होता है. हाँ, बेसिक्स अगर पता होता है तो रटना थोड़ा सा आसान हो जाता है. हाँ, राइट. जैसे कि मॉर्फोलॉजी का एग्जांपल दिया, तो उसमें एग्जांपल्स रटने का तो और कोई उपाय तो मेरे को तो नहीं मिला था. आई हैड टू रीड इट अगेन एंड अगेन, और अगेन वही चार्ट्स वाली टेक्निक. अच्छा, उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ था. एंड एज फार एज कंसेप्चुअल पार्ट इज कंसर्न्ड, इवन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में काफ़ी याद करना होता है. रहता है डेटा. हाँ, लाइन टू लाइन उसमें क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल भी होती हैं NCERT में, जो थोड़े डिस्कशनरी टाइप से लिखा हुआ है, उसको भी याद करना इम्पोर्टेंट होता है. ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन ऑल्सो. हाँ, उसमें नीट में भी कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस आउट ऑफ NCERT, तो उसके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है. राइट. बट चैप्टर्स लाइक मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटमी एंड एनिमल हस्बेंड्री, आई वुड से NCERT इज इनफ. हाँ, डेफिनेटली अगर टाइम है तो उनमें भी जाया जा सकता है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस इवन, क्योंकि पेरिफेरल नॉलेज इज गुड. बट अगर टाइम नहीं है, जैसे लास्ट फ्यू मंथ्स हैं, देन इट्स बेटर टू फोकस ऑन NCERT. ओके.
कोचिंग मॉड्यूल्स अगेन बाहर वाले मटेरियल के लिए जो टीचर्स बताते थे वही मेनली मैं पढ़ता था। दोज वर अगेन बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चंस की पहले क्या आया हुआ है आउट ऑफ एनसीईआरटी। एज सच तो कोई प्रिडिक्ट करने का तरीका तो है नहीं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या आएगा, तो इट्स बेटर टू स्टिक विद द मटेरियल दैट यू हैव। अगर ये सोचने लगो कि ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है तो उसकी तो कोई एंड नहीं होगी, कुछ भी आ सकता है। प्रैक्टिस के लिए दिस अगेन कोचिंग मटेरियल एज सच बायो में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़रूरत होती नहीं है। आई फेल्ट प्रीवियस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। I did up till 15 to 20 years at least. Chapters like Animal Kingdom जो कि जिसमें पहले बहुत अजीब से क्वेश्चन आते थे और अब नहीं आते, उनमें वो 2005 से पहले वाले स्किप भी कर सकते हैं। बट चैप्टर्स लाइक जेनेटिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है उनमें तो किए थे मैंने और वो काफ़ी बेनिफिशियल थे। कर लेना बेटर रहेगा ना, वही एक्स्ट्रा नॉलेज जो आ जाती है उससे। तो आई वुड से पुट इन द हार्ड वर्क and keep a little bit of belief in yourself that it will work out, and everything has a reason. I mean, NEET is not the end, but definitely if you put in the hard work and you're sincere and consistent, then you'll get there.